So this time I would like to turn with me to 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. और आइए हम अध्ययन के लिए निकाल लें पहला कुरिन्ती की किताब उसका 6वां अध्याय। In the previous Bible study, we have already studied to some extent, and today we will continue from there. और पिछले क्लास में हमने काफी विषय को देख लिया था, आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। We will read from verses 12 onwards. First I will do it, and then I request Brother Anil Khare to kindly continue. 1 Corinthians chapter 6 verse 12 onwards. All things are lawful for me, but not all things are profitable. All things are lawful for me, but I will not be mastered by anything. Food is for stomach, and the stomach is for food. But God will do away with both of them. Yet the body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. Now God has not raised the Lord, but will also raise us up through his power. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take away the members of Christ and then make them members of a prostitute? May it never be. Or do you not know that the one who joins himself to a prostitute is the one with her? For he says, the two shall become one flesh. But the one who joins himself to the Lord is one spirit with him. Flee immorality. Every other sin a man commits is outside the body, but immoral man sins against his own body. Or do you not know that the body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? For you have been bought with a price. Therefore glorify God in your body. तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। पहला कुरिन्ती की किताब 6वां अध्याय 12 से लेकर 20 तक। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Dear Lord, we are grateful to you, Lord, for this evening Bible study time you have granted to us in your grace. पिता, हम धन्यवादित हैं आज की संध्या के लिए कि आपने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बाइबल अध्ययन का समय दिया। Thank you for the dear ones who are listening to your word. We pray that, Lord, thou would bless thy servant so that he may be able to exercise the freedom of the Spirit, even dear brother one who is translating. और पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं उन सुनने वाले प्रत्येक दासों के लिए, भाइयों के लिए, और साथ ही अनुवाद करने वाले भाई के लिए, कि उनके ऊपर में जो आपने आत्मा की स्वतंत्रता का जो अनुग्रह दे रखा है उसको वो इस्तेमाल कर सकें और उसके द्वारा तेरी महिमा कर सकें। Pray for all the dear ones who are listening to your word. Pray that thou would open our eyes of understanding so that we may know the truth and we may be delivered from the bondage. और पिता, होने दीजिए कि आपके वचन को समझने के लिए हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए, हमारी समझ को खोलिए, ताकि हम तमाम प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र हो जाएं।
In Jesus' most precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen. 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 So let us recall our memory that 1 Corinthians has been divided into 6 parts. और जैसा कि हम कुरिन्थियों के अध्ययन किए थे, उसे अध्ययन करने के लिए हमने पहला कुरिन्थी को 6 भागों में बांटा था। So please remember that the author writes according to a particular theme that runs through the book, and we need to divide into different sections and we need to study the word systematically. और हम जानते हैं कि एक पुस्तक में एक विशेष जो थीम है और विषय दौड़ता रहता है पूरे उस अध्ययन के दौरान, और हम उसे अध्ययन करने के लिए उसको विभिन्न भागों में और उपभागों में बांट लेना है ताकि हम उसे अच्छी रीति से समझ सकें। So we have already studied why there are divisions in the local church. We find it from 1 Corinthians chapter 1, 2, 3 and 4. और सबसे पहले भाग में हमने 1 अध्याय से 4 अध्याय के बीच में देखा था कि कलीसियाओं में विभाजन क्यों होता है। And secondly, there are many questions raised by many people saying that why even godly people are becoming prey to the moral failures, why many marriages are being failed. और उसके बाद हम देखते हैं दूसरे भाग में बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में आते हैं, क्यों ऐसा होता है, बहुत सारे लोग नैतिक रूप से असफल क्यों हो जाते हैं, और विवाह से संबंधित बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में रहते हैं। So people, those who do not believe religion, people, those who do not follow God of the creator, creation, and we understand. But people, those who say that we know God, people, those who say that we follow the Bible, we are Christians, even among such, godly families, it is surprising to hear that there are certain moral failures and marriages are in conflict. और हम देखते हैं कि ना केवल ऐसे लोग जो दूसरे धर्म के हैं और जो परमेश्वर की रचना को, सृष्टि को नहीं जानते, उनके साथ तो कई प्रकार की गलतियां होती है, लेकिन हम आश्चर्य होते हैं उन लोगों को देखकर जो कि परमेश्वर को जानते हैं और उसके अनुसरण करते हैं। ऐसे विश्वासी भी हैं, ऐसे ईश्वर के लोग भी हैं, लेकिन उनके जीवन में भी हम नैतिक असफलता को और विवाह की बहुत सारी उलझनों को देखते हैं। So that section is covered by 1 Corinthians chapter 5, 6 and 7. तो ये जो सवालों का जो भाग है, ये पहला कुरिन्थी के दूसरे भाग में अर्थात 5, 6 और 7 अध्याय में हम देखते हैं। So first section we have seen earlier, and we have seen the second section also, chapter 5 and chapter 6, first part we have seen. Today we are going to see little further. और दूसरे भाग में हमने 5 अध्याय को पूरा कर लिया था। छठवें भाग के कुछ शुरुआती भागों को देखकर आज हम उसके आगे को अध्ययन करेंगे। So in the previous section we have seen that 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11, there were certain lawsuits among Christians, among so-called believers, so-called, churchgoers. Then how should they handle this particular issue? We have seen in our previous class. और हमने पिछले अध्ययन में पहला कुरिन्थी 6 अध्याय के 9 से 11 के बीच में देखा था कि मसीहों में कैसे मुकदमे बाजी होती है और लोग अदालत में जाते हैं, अदालतों में अपने फैसले के लिए, और विश्वासी कहलाने वाले लोग और चर्च के जो लोग भी हैं, ऐसे लोग भी अदालतों में जाते हैं अपने फैसले के लिए। इस विषय की परेशानियों का हमने अध्ययन किया था। So if you did not hear the previous message, let me just recap what we have studied in our previous class. अगर आपने पिछला अध्ययन नहीं सुना होगा तो है ये थोड़ा सा हम उसे थोड़ी देर के लिए दोहराएं ताकि आप समझ पाएं। Can a Christian go to the law of court or not? क्या एक मसीही को न्याय के लिए अदालतों में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? And the very law of court is meant to do justice. और अदालतों में वास्तव में न्याय होता है या नहीं होता है? No, the law of court is meant to execute the justice. और हम जानते हैं कि अदालतें इसलिए रखी गई हैं कि वहां लोगों को न्याय मिले। Yeah. So there are two groups of people. One group of people say that
No, God is the ultimate judge. We need to go to ultimate judge God. Why should we go to the law according to the law of land before the judge? Let us just pray and leave the matter to the Lord. And if it is the will of God, He will do it. Otherwise, let's commit whatever may be the result unto the Lord. और दो प्रकार के लोगों में से पहले प्रकार के लोग वे लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वही न्यायी है और हमें परमेश्वर के पास ही जाना चाहिए, हमें संसार के अदालतों के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर पर अपने सारे विषयों को छोड़ना चाहिए ताकि वो इसका सही न्याय करे। So the second group of people, what they say is, no. God has instituted these law of courts. Even this is also the plan of God. So what we do is, let us pray, but prayerfully approach the law of court, and let us see how God decides through these local judges. और दूसरे प्रकार के लोग वे लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर ही है जिन्होंने अदालतों की इंतजाम किया है और ये परमेश्वर की योजना है कि वहां जाकर अपने न्याय को प्राप्त करें, इसलिए कई लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा अदालत में जाते हैं ताकि वहां एक निर्णय को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर की सहायता से उन्हें मिल सके। So, but what we are concerned is what people say is not the matter. What Bible says is the matter. तो हमारे यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि लोग क्या कहते हैं उसे मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है वो महत्वपूर्ण बात है। But we respect them. It does not mean to say that we reject our local people who gives us suggestion, or we neglect them, or we are so spiritual that we don't care them. No, that's not the idea. But what Bible ultimately commands us, in the light of the truth that is there in the Bible, we need to handle things. और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कलीसियाओं को, अदालतों को आदर नहीं करना है, पर हमें अदालतों का भी आदर करना है। भले हम आत्मिक लोग हैं तो भी इस बात को समझना है कि वहां पे भी न्याय होता है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में हमें हमारे जीवन का सब विषयों का न्याय हो सके। So in our previous study, we have dealt in detail what I understood is, when I study the scriptures, 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11, verses even 1 to 11, not just 9 to 11, 1 to 11. So what I understood is, spiritual matters must be dealt by the spiritual people. तो पहला कुरिन्ती 6 अध्याय उसके 1 से 11 वचन पढ़ने तक जहां तक मुझे समझ में आता है, और वो बात वहां पे वो है कि आत्मिक लोगों को अपने आत्मिक विषयों के लिए आत्मिक लोगों के पास ही जाना चाहिए। If spiritual people can understand, and they will do justice. If the judge is not aware of the truth concerning the scriptures, what it says, it's not possible to expect justice from such a person who is not spiritual. और आत्मिक विषय के लिए अगर कोई न्याय के लिए गए हैं, तो जो लोग न्याय पर एक स्थान पे खड़े हुए हैं वे लोग अगर नहीं समझ पाए, न्याय नहीं कर पाए, तो बहुत ही इसकी दिक्कत होगी, क्योंकि न्यायियों को वास्तव में सच की समझ होनी चाहिए और अगर सच को वो ना समझ पाए तो न्याय पाने में कठिनाई होगी। The spiritual judge or spiritual leaders, what I mean is, those who understand the scriptures, that means the Bible, and the truth that is recorded in the Bible. A judge is supposed to understand the truth that is hidden behind the text written in the Bible. Then he'll be able to do justice. तो जहां तक मुझे समझ में आता है, आत्मिक लोग जब किसी के पास न्याय के लिए जाते हैं तो आत्मिक न्यायी होते हैं, उनका मतलब यही है कि वे लोग परमेश्वर के वचन को और उसके सत्य को समझ पाते हैं, और ये न्यायी लोग सत्य के जो वचन में छुपा हुआ है उसकी सच्चाई को जानकर न्याय करते हैं। So I believe that any Christian or any Christian leaders need not go to the local law of justice to know whether which leader should rule or which leader should take over the administration, or under whose power the church should be controlled. I believe the leadership of the local church has to be decided by God, and God will decide through the scriptures.
तो मेरा विश्वास है कि मसीही लोगों को अ, अपने लीडर्स चुनने के लिए कि कौन हमारे अगुवे होंगे या किनकी नियंत्रण में हम चलेंगे, किन्हें उसका अधिकार देंगे, इस विषय के लिए हमें अदालतों में ना जाकर हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। और परमेश्वर ही है जो ये चुनते हैं। वचन के द्वारा हम इस बात को देखते हैं कि कौन हमारे अगुवे होंगे, उस बात का न्याय इसी के द्वारा हो। But if it is of a property issue, if it is of a property issue, okay, that's true. And the law of the land says that approach the just for justice to the law of court. That is fine. I have no issue. But Bible says if your brother is contending against you, you forsake it. You go on loss instead of going to a pagan justice. You better forsake, go on loss, but don't go for the law of the land. और हम इस बात को देखना है प्रियो, अगर कोई संपत्ति का विवाद है, संपत्ति का विषय है, तो जरूर हम अदालतों के पास जा सकते हैं जहाँ पे वह उसका न्याय हो। परंतु अगर कोई विश्वासी भाई भाई में इस प्रकार का न्याय हो तो वो जरूर उन्हें क्षमा करना चाहिए और उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वो किसी अविश्वासी न्याय के पास न जाएं। If you don't go, but other person files against you, then we can't help it. We have to anyway, we have to go. We have to obey the law of the land. और एक बात जरूर है कि भाई अगर दूसरे लोग हमारे खिलाफ मुकदमा करते हैं, और हमें तो किसी भी हाल में फिर उसको न्याय के लिए अदालतों पर, संसारिक अदालतों पे जाना ही पड़ेगा। We need to negotiate for peace, but not compromising the scriptures, not compromising the truth that is recorded in the Bible. हमें शांति के लिए वार्तालाप तो करना है, समझौता तो करना है, लेकिन उसके लिए हमें वचन से समझौता नहीं करना। परमेश्वर के जो सत्य वचन है उससे हमें समझौता नहीं करना है। Please remember, God of God, King of Kings, He is the judge, and all judges are under the God Himself. और एक बात हम याद रखना है कि हमारा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है और वो राजाओं का राजा है। इसलिए जितने भी धरती के न्याय हैं सब उन्हीं के अधीनता में होना चाहिए। So, first priority must be given to King of Kings, and second priority has to be given to the King. इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि हम राजाओं के राजा के पास जाएं, उसके बाद दूसरे में हम संसार के राजा के पास जा सकते हैं। When the Lord is with us, truth is with us, and justice is with us. And people may use many different cunning ways or corrupting ways, or any kind of malpractice, or any kind of lies and cheating, vagara vagara. But still, when God, as long as God is with us, and God will take care of. When we pray, when we wait upon Him, when we obey the truth of the scriptures, we need not worry whatever may be the consequences. और प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ में है और ये वो प्रभु सच सच है और वो सच्चा न्यायी है। तो इस संसार के भ्रष्ट काम करने वाले लोग, गलत तरीके से काम करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग और धोखेबाज लोग अगर हमारे विरोध में काम करते हैं तो भी हम नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु से हम प्रार्थना करते समय हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी जो है वो हमारे लिए उपाय करेगा, समाधान करेगा। But Bible clearly says that for the sake of gospel, for the sake of Christ, for the sake of truth, we have to face the opposition. We have to face injustice, and we have to love them. We have to pray for them. We have to bless them, and we have to forgive them. और हम देखते हैं कि बाइबल बताती है वचन के कारण, मसीह के कारण और सच्चाई होने के कारण हमें अपने विरोधियों का सामना भी करना है। अगर अन्याय होता है उसका भी सामना करना है, और प्रेम के कारण हम लोगों को क्षमा करना है, उन्हें आशीर्वाद देना है ताकि उनको भी क्षमा मिल सके। People do against us because they do not know. और लोग हमारे विरोध में काम करते हैं लेकिन वे उसे नहीं जानते हैं।
That's what the Lord says. Father, forgive them, for they do not know what they do. इसलिए आप देखे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। Those who crucified Jesus Christ, they did not know that he is the real God. और जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए वो भी नहीं जानते थे कि वही सच्चा परमेश्वर है। We find even that truth in the scriptures. If had they knew that, they would have not done it. Just they were brainwashed. They were brainwashed by the religious leaders. They thought that he was a blasphemer, and then they killed him, on the cross of Calvary. और हम देखते हैं प्रियो कि अगर वो सच जानते तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह को वो क्रूस पे नहीं चढ़ाते। जितने लोग भी उनको सताने वाले थे वे भटके हुए लोग थे और धर्म गुरुओं ने उनके लिए उन्हें भ्रमित कर दिया था, उन्हें भरमा दिया था। इसलिए उन्होंने ईश्वर की निंदा का झूठा आरोप लगाकर प्रभु यीशु मसीह को मार डाला। So Jesus Christ clearly told us in John's Gospel chapter 13, in John's Gospel chapter 15, that because we follow Jesus Christ, we will definitely face the opposition, definitely resistance and persecutions. And it's not strange. Even Apostle Peter says in 1 Peter chapter 4, and God will be with us, and we will be the living witness. और हम इस चीज को देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 13 अध्याय 15 अध्याय इन सब में कहा है कि जो लोग मेरे पीछे आएंगे, मेरा अनुसरण करेंगे, उनका विरोध होगा, सताए जाएंगे और उनके जीवन में रुकावटें आएंगी। और इवन पहला पत्रस 4 अध्याय में पत्रस ने भी कहा था कि हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आएंगी, लेकिन प्रभु हमारे साथ है और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित गवाह हैं। So why I had to review what we have studied earlier, because many people do not know how to handle when there is conflict in the church, when there is conflict with the leadership or with the law of the land or with the people around us. तो हम देखते हैं कि क्यों मैं इस बात को बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रियो चर्च में कई प्रकार की समस्याएं आती है, उसको हम सामना करना है। लीडर्स के बीच में समस्या आती है, उसे हमें सामना करना है। अदालतों में जाना पड़ता है, उसके हमें सामना करना है। और कई हमारे जो आसपास लोग रहते हैं उनके बीच की बातों का भी हमें सामना करना पड़ता है। May the Lord give us wisdom and understanding to handle such things, and may the Lord give us new insights as we love the word and read the word and meditate the word. तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि वो हमें बुद्धि और समझ दे कि ऐसे विषय अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो वो हमारे अंतर मन को, अंतर्दृष्टि को ऐसा प्रकाश दे कि हम इन सब के सही रीति से सामना कर सकें। So let us proceed further. So we have seen that chapter 6 verses 1 to 11 talks about lawsuits among Christians, but whereas chapter 6 verses 12 to end, we understand how God is dwelling in our physical bodies. Our body is a temple of the Holy Spirit. तो हमने देखा था प्रियो पहला कुरिन्थी 6 अध्याय के 1 से 11 के बीच में कि मसीहों के बीच में जो मुकदमेबाजी होती है उसके बारे में हमने देखा। और 6वें अध्याय के 12 से लेकर अंतिम वचन तक हमने देखा कि वास्तव में जो हमारा शारीरिक देह है वो परमेश्वर का मंदिर है। So chapter 6 verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? और पहला कुरिन्थी 6:19 में लिखा है कि क्या तुम जान दे कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। I don't know whether you had any question or not, but when I read this word, I had many times a question: how can God dwell in our body? और अब मुझे नहीं पता कि आपके अंदर सवाल आता है कि नहीं, लेकिन मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो मेरे अंदर एक सवाल आया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे हमारे अंदर वास कर सकते हैं। So when Holy Spirit is dwelling within us, and the Bible says from 15 to 17, when we read, I think we need to read once again, because uh, 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 when Holy Spirit dwells within us, our body is the temple of the Holy Spirit. How much care we should take with regard to the body? और आप 15 से 17 वचन को पढ़ेंगे प्रियो तो इस बात को समझ पाएंगे
कि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा हमें वास करते हैं, तो इस मंदिर का कैसे हमें ख्याल रखना है, इस बात को आप वचन में देख पाएंगे। It does not mean to say that what we eat, what not we eat, and how much we have to eat. I'm not talking about food, that enables me to take care of my body. और मैं यहाँ पे ये बात नहीं बता रहा हूँ प्रियो कि हम क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है अपने शरीर के लिए, वो वाली बात यहाँ नहीं है। So we have got enough assistance from the hospitals, from the medical professionals. They will help us, what to eat, what not to eat, and how to eat, and the quality, quantity, वगैरह of different age groups and different, the health structure we have. और हम देखते हैं प्रियो की जो मेडिकल सर्विस है, हॉस्पिटल है, उन सभी तरफ हमको पता चल जाता है, वहाँ सिखाया जाता है कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, किस उम्र के लोगों को कितना कितना खाना है, ये सब हमें जानकारी वहाँ से मिल सकती है। We find it even verse 13, chapter 6, verse 13. Food is for the stomach, and the stomach is for food, but God will do away with both of them. Yet the body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. और जैसा कि पहला कुरिन्ती 6 अध्याय के 13 में लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए। The Bible is very clear, 13th verse of the last part. The Lord is for the body. और 13 वचन के अंत में लिखा है कि प्रभु देह के लिए है। Because, it says in verse 20, verse 19, second part, whom you have from God, and you are not your own, for you have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. और जैसा कि 19 वचन के अंतिम भाग में और 20 में लिखा है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Many times we talk about only spiritual matters. Normally we don't talk much about our physical body. और बहुत बार हम अपने आत्मिक विषयों के विषय में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हम अपने भौतिक शरीर के बारे में कई बार बात नहीं करते हैं। Again, I am not talking about food, water, and meat and वगैरह. और यहाँ पे मैं फिर आपको भोजन और पानी और इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। The Bible clearly says that verse 13 last part, the Lord is for the body, and 19th verse, the last part, that because Holy Spirit is the temple and He is living within us, and we are not of our own. This because He shed His precious blood on the cross of Calvary and paid heavy price, and He purchased us, and we are supposed to glorify God in our body. और वचन हमें यह बताता है, हम देखते हैं पहला कुरिन्ती 13 अध्याय के अंत में कि प्रभु देह के लिए है, और 19 वचन और 20 वचन में भी देखते हैं कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, और परमेश्वर की ओर से हमें ये मिला, इसलिए हम अपने नहीं हैं, पर इसीलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है, ताकि हम उसकी महिमा करें। So Apostle Paul talking about all beautiful doctrines in first 11 chapters of Romans, when he opens about the practicing the doctrines, he begins in 12th chapter verses 1 and 2 with the body of a believer. और आप देखेंगे कि पौलुस जो है जब रोमियो की खत लिखता है, तो 1 से 11 अध्याय के बीच में वो सिद्धांतों के बारे में लिखते हैं कि किस प्रकार के सिद्धांतों से हमें जीना है, और इस बात को खत्म करके वो 12वें अध्याय में इस बात को शुरू करते समय वो हमारी देह की बात करते हैं। Let me read it for you. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind,
so that you may prove what is the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. और रोमियो 12 अध्याय के 1 और 2 में ऐसा हम देखते हैं, लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। So, having revealed all these amazing doctrines of truth in Romans 11th, first to 11 chapters, he now talks about both spiritual responsibility and physical responsibility of a believer. तो 1 अध्याय से लेके 11 अध्याय के बीच में इतने सारे सत्य के प्रकाशन देने के बाद पौलुस जो है 12वें अध्याय में हमारे आत्मिक शरीर के साथ साथ भौतिक शरीर अर्थात दोनों शरीर की बात करते हैं। So, with respect to the spiritual dimension, what he says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. और आत्मिक देह के विषय में वे बताते हैं कि हम संसार के जैसे नहीं बनना है, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदल जाना है। So we have already seen that in the first 11 chapters, Paul is talking about doctrine of sin, doctrine of justification, doctrine of sanctification. और हमने देखा कि पहले के लेकर 11 अध्याय के बीच में प्रेरित पौलुस जो है पाप के सिद्धांत के बारे में, धर्मी ठहराए जाने के सिद्धांत के बारे में और पवित्रता के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। So now he says that you must know the will of God which is good, acceptable, and perfect. This will happen only when we offer your bodies upon the altar as a living sacrifice. तो प्रेरित पौलुस जो है इन 11 अध्यायों में ये सब सिखाने के बाद वो कहते हैं कि अब जो परमेश्वर की इच्छा है, जो भली भांति और सिद्ध है, उसको जानने के लिए हमें अपने शरीरों को परमेश्वर की वेदी पर जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना है। Because we are purchased by his precious blood, we are not of our own, and this body belongs to the Lord. और चूंकि प्रभु ने हमें कीमत देकर खरीदा है, इसलिए हम खुद के नहीं हैं और ये हमारी देह खुद की नहीं है, ये उसी की है। And in my Bible, English Bible, in NASB version, verse 1 and the last part, the author of Apostle Paul says that offering or presenting our bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. और NSV वर्शन में जैसे आप देखेंगे, एक वचन के यहाँ जो अंतिम भागों में बता रहा है कि हमारे जो अपने शरीरों को जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाना, ये हमारी आत्मिक सेवा के रूप में पूरा होता है। In 2 Corinthians chapter 4, Apostle Paul gives a beautiful explanation in verse 7. 2 Corinthians chapter 4, verse 7. He says, we have this treasure in the earthen vessels, so that the surpassing greatness of the power will be of God, not from ourselves. और दूसरा कुरिन्ती 4 अध्याय के 7 में वो बताते हैं कि परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। What a statement, what a truth. The heavenly treasure is living in an earthen vessel. Amazing. कितनी सुंदर सच्चाई को यहाँ पे प्रकट किया गया है कि जो स्वर्गीय जो महिमा है, जो सामर्थ्य है, वो धरती के मिट्टी के बर्तनों में रखा है। So when Holy Spirit dwells within us, we understand or we own or we possess the surpassing greatness of the power of God, power, will of God, of the power, will of God, not of ourselves. तो वहां जब ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें समझ देती है तो हमें समझ में आता है कि जो परमेश्वर की जो असीम सामर्थ्य जो हमारी इस मिट्टी के बर्तनों में रहती है, वो हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर की ओर से है। So my question is, how it is possible God dwelling in ordinary
earthen vessel human being. तो मेरा एक सवाल है कि ये कैसे संभव है कि परमेश्वर इस संसार के धरती के मिट्टी से बनाए हुए किसी शरीर में वास कर सके। Paul says in 1 Corinthians chapter 6 verse 17, that is there right on the screen. You know what Paul says? So what Paul says, the one who joins himself to the Lord is one spirit with him. प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्ती 6 के 17 में कहते हैं, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। So when the Spirit of God, Holy Spirit dwells within my spirit, that means I am one with him and he is one with me. इसका मतलब है कि जब मेरी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ रहती है तो हम दोनों की जो आत्मा है वो एक हो जाती है। We know that the Bible very clearly says that those who are in Christ, they are new creation. 2 Corinthians 5:17. और हम जानते हैं कि दूसरा कुरिन्ती 5 के 17 में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि हैं। And Romans chapter 8 verse 1 says, those who are in Christ, there is no condemnation. और रोमियो 8 अध्याय के 1 में लिखा है कि अब जो मसीह में हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। And Colossians chapter 2 verse 10 says, you are complete in Christ. और कुलूसियों की 2 अध्याय के 10 में लिखा है कि तुम पूर्ण रीति से मसीह में हो। And John's Gospel chapter 15, the first 10 verses says that I am the vine, you are the branches, and you abide in me, I in you, you bear much fruit and more fruit. और यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 1 से 10 के बीच में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि प्रभु सच्ची दाखलता है और हम उसकी डाली हैं, और वो जब हम में और हम उनमें बने रहते हैं तो हम बहुत सारा फल लेकर आते हैं। We have already seen that Romans Gospel chapter 6, when Jesus Christ died on the cross of Calvary, I am unified in him, I am baptized into his body, and I died with him, I was buried with him, I was raised again along with him. और मैंने आपको बताया था प्रियो, जब हम रोमियो की किताब 6 अध्याय पढ़े थे वहां हमने बपतिस्मा के बारे में अध्ययन किया था, तो हमने देखा था कि यीशु मसीह जैसे क्रूस पर चढ़ाए गए, तो मैं बपतिस्मा लेते समय उनके साथ उस क्रूस पर रहता हूँ और उनके साथ मैं मारा जाता हूँ, और जैसे वो गाड़े गए वैसे ही मैं भी उनके साथ गाड़ा जाता हूँ, और वो जैसे मुर्दों में से जी उठे वैसे ही मैं भी उनके साथ जी उठता हूँ। So the unity in Christ, I was actually wondering how it is possible, but 1 Corinthians chapter 6 verse 17 very clearly says that when Holy Spirit enters into my life, when I was cleansed with the precious blood of Jesus Christ, when Holy Spirit enters into my spirit, when I was regenerated, and me and Holy Spirit, we were united together. तो इसका इस मसीह में हम एकता में कैसे हैं, मैं और मसीह एक कैसे हैं, इस बात को विशेष रीति से पौलुस पहला कुरिन्ती 6 अध्याय के 17 में समझाते हैं कि पवित्र आत्मा जो है मेरी आत्मा के साथ जुड़ जाता है, और पुनरुत्थान के बाद जैसे पवित्र जो मनुष्य जैसे यीशु मसीह जी गए, वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमारी आत्मा के साथ जुड़कर वो हमें जिला देते हैं। But we don't find any mysterious kind of strange kind of experiences, or maybe some supernatural experiences won't happen. You don't happen. You may think that "Arey, I'm the same man, I'm of the same kind. I don't find any, a spectacular changes or experiences. No, I didn't have all that. और कई बार हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा होने के बाद हमको लगता है कि कोई अलौकिक अनुभव हमारे जीवन में नहीं आया। हम बपतिस्मा लिए या आत्मा पा गए तो भी हमारे जीवन में वैसे ही तो हम हैं जैसे पहले थे, वैसा कुछ विशेष मेरे जीवन में बदला नहीं, ऐसा हम कई बार अनुभव करते हैं। But Bible very clearly says when Holy Spirit begins to take residence in our life, what kind of changes we experience. लेकिन बाइबिल हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं तो हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। And this
John the Baptist says in Matthew's Gospel, chapter 3, when Pharisees and Sadducees and the scribes they came to him for baptism, he says, "You children of serpents, who told you to repent? First bear fruits worthy of repentance." और अब देखे होंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो किस प्रकार मत्ती 3 अध्याय में कहते हैं, जब फरीसी और सदुकी लोग उनसे बपतिस्मा लेने आ रहे थे तो वो कह रहे थे कि हे सांप के बच्चों, तुम कैसे कर यहाँ पे बपतिस्मा ले रहे हो, इसीलिए तुम मन फिराओ कि योग्य पहले फल लेकर आओ। That's very important. When Holy Spirit enters into our life, begins to dwell in our life, definitely we find a landmark of difference. Definitely we find a paradigm shift in our life. Definitely we find a deep and supernatural changes, but not of spectacular experience outside. तो ये बात स्पष्ट है प्रियो कि जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा वास करता है तो हमारे जीवन में स्वभाव में विशेष परिवर्तन आता है। हम एक तरफ से दूसरे तरफ के अनुभव में चले जाते हैं और कुछ अलौकिक जो है हमारे जीवन में आत्मिक कुछ परिवर्तन आते हैं, लेकिन कई बार हम इसे सांसारिक रूप में हम नहीं देख पाते हैं। You may ask a question, brother, you are talking so many things, but you please tell me or help me to understand, how do I know Holy Spirit is dwelling within me? और आप में से एक सवाल पूछ सकते हैं कि मैं ये कैसे जानूंगा कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में वास करते हैं। The Bible says, when we confess our sins, when we believe Jesus Christ as our Savior and Lord and confess our sins, 1 John 1 9, according to that verse, the Lord Jesus Christ cleanses us and purges us, makes us clean with His precious blood by faith. तो हम इस सवाल का उत्तर इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहला यूहन्ना 1:9 में भी जब हम पढ़ेंगे कि मनुष्य जब अपने पापों का अंगीकार करता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, तो वो उसका जीवन जो है, पाप जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, विश्वास के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं और वे उनका अधर्म उनके जीवन से दूर होता है। Then Holy Spirit enters into our life. और तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। You know what happens? The immediate changes were the load of burden of sin flees away. तो सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब आते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है? हमारे जीवन में जो पाप का बोझ था वो उतर जाने का अनुभव होता है। And there is a song, normally sung among the Sunday school children, rolled away, the burden of my sins rolled away, because Christ Jesus took that burden upon himself. He made me free. और संडे स्कूल में ये गीत बच्चे गाते हैं कि मेरा पाप मेरे जीवन से चला गया, मेरा पाप मेरे जीवन से चला गया, क्योंकि यीशु मसीह ने उस पाप के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। And guilt conscience is removed. और मेरे अंदर से जो आत्मग्लानि की भावना थी वो दूर हो गई। That's important. Who can remove the guilt conscience? No other on the face of the earth. Only the Lord Jesus Christ and the blood of Jesus Christ. Because he forgave all my sins, he cleansed me, and landmark of that proof is I enjoy the guilt removal by the precious blood of Jesus Christ. और इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है प्रियो जो हमारे जीवन से आत्मग्लानि को दूर कर सके। इस पूरे धरती पर केवल हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जिन्होंने अपने लहू से हमें शुद्ध किया, हमें क्षमा किया और हमें शुद्धता के अनुभव में ले गया। और इसलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आते समय हमारे जीवन से यह आत्मग्लानि जो पापों के प्रति है वो दूर हो जाती है। So that's what Hebrews chapter 9 verse 14 says, that the blood of Jesus Christ cleanses me, removes the guilt, and give me a conscience of, a pure conscience, a good conscience, a strong conscience, so that I can serve the Lord with my body. और इब्रानियों की किताब 9:14 में लेखक कहता है कि यीशु मसीह का जो लहू है वो सनातन आत्मा के द्वारा जब चढ़ाया गया तो उसने हमारे विवेक को शुद्ध कर दिया
और इसलिए आज हमारा विवेक अच्छा हो गया, शुद्ध हो गया, जिसके कारण हम जीवित परमेश्वर की सेवा कर पाते हैं। So how many signs we have seen? Number one sign is the burden of sins rolled away. तो कौन कौन सा अनुभव आता है पवित्र आत्मा पाने के बाद? सबसे पहला चिन्ह उसका ये होता है कि पाप का बोझ हमारे जीवन से दूर हो जाता है। So we find light ourselves, and we will see the whole world in a different perspective. और इसलिए हम एक हल्कापन महसूस करते हैं और पूरे संसार के या धरती को हम दूसरे ही दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। As long as we continue in sin, we will be in the darkness. Our eyes are closed like blindness. और जब तक हम पाप में रहते हैं, हमारे जीवन के आंखों के सामने अंधेरा बना रहता है और हम एक अंधे के समान चलते रहते हैं। When Jesus Christ cleanses me and washes me with his precious blood, and Holy Spirit enters into my life, the burden of sin rolls away. My eyes of understandings are opened. I'll be able to see things around in a completely a different perspective from God's perspective. और होता ये प्रियो कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आते समय वो हमें शुद्ध करते हैं, अपने पवित्र लहू से हमें जब शुद्ध करते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, तो पाप का बोझ हमारे जीवन से दूर होता है, हमारी आंखें ज्योतिर्मय होती है, जिससे हमको समझ मिल जाती है और हम चीजों को अपनी दृष्टिकोण से नहीं, परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख पाते हैं। And then Bible says the joy of salvation, unspeakable joy of salvation with full of glory. It can't be explained, but it has to be experienced. और उसके बाद बाइबल बताती है कि उद्धार का आनंद हमारे जीवन में आता है। हालांकि उद्धार के आनंद को समझाना बहुत कठिन है, लेकिन वो उद्धार का आनंद हमारे जीवन में आता है, जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। We find that truth in 1 Peter chapter 1 verse 10. और वो हमें पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 10 वचन में देखने को मिलता है। Though burden of sins rolled away, number one. Number two, guilt is removed. And number three, joy of salvation, unspeakable with full of glory, is experienced. तो पहला चीज हमारे जीवन से पाप का बोझ दूर होता है, दूसरा हमारे जीवन से आत्मग्लानि जो होती है वो खत्म हो जाती है, और तीसरा हमें उद्धार का आनंद मिलता है, जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। And fourthly, our eyes of understandings are opened. We will no more sit in the darkness. We will come to the light. And when we see the things around, we will see from God's perspective. और चौथी चीज हमारे जीवन में क्या होती है? हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती है, इसके द्वारा हमारी समझ खुल जाती है, और जो कुछ हमारे सामने अंधेरा था संसार का वो दूर होता है, और ज्योति में हमें सब चीजें दिखाई देती है, और परमेश्वर की दृष्टि से हम संसार को देख पाते हैं। Then we begin to love the Lord Jesus Christ. और तब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम कर पाते हैं। Before I used to hate Jesus Christ, but after being born again, after being saved from the terrible judgment of God, and I begin to love God, I begin to desire to know more God. और जब यीशु मसीह को हम जानने से पहले उनसे नफरत करते रहते हैं, हमारे अंदर घृणा होती है, परंतु जब हम बचाए जाते हैं और परमेश्वर की भयानक न्याय से बच जाते हैं, और उस बचने के बाद हमारे जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम आता है, और तब हम उसे जान पाते हैं कि वो कैसा परमेश्वर है। So we love God, and parallelly we hate sin. और एक तरफ तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और ठीक उसी के साथ समानांतर तरीके से पाप से नफरत करते हैं। So in our common language, we call this as conversion. और इसी को साधारण भाषा में परिवर्तन कहा जाता So है। I'm not talking about religious conversion. I'm talking about life conversion. तो मैं यहाँ पे किसी धर्म को बदलने की बात नहीं कह रहा हूँ, परंतु जीवन को बदलने की बात कह रहा हूँ। So when Jesus enters into our life, when Holy Spirit enters into our life, we are converted. Earlier we were slaves to the sin. Now we can hate sin, and we will overcome sin. We will practice righteousness, and we will be truthful, we'll be faithful, we'll be sincere, we'll be honest, and we will be the people of love. और हम देखते हैं प्रियो कि
प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को पाने के बाद हमारा जीवन बदलता है। पहले हम पाप के गुलाम होते हैं, लेकिन बाद में हम उस पाप से नफरत करने लगते हैं। हमारे जीवन में हम धर्मी कहलाते हैं, सच्चे भक्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में विश्वास आता है, ईमानदारी आता है, और हम अपने आसपास के लोगों को प्रेम प्रकट कर पाते हैं। Then our hearts are filled with the love of Christ. And when we look at the people, those who do not know Christ, those who are landing up in the eternal judgment of hellfire, then we are moved with passion, we are moved with love, and we will communicate the love of Christ to the people around us. और तब हमारे हृदय में मसीह का प्रेम आता है, और हम आस-पास के लोगों को जो नाश हो रहे हैं, आग में जा रहे हैं, उनको देख के हमें दया आती है, और हम उनको दया और करुणा की दृष्टि से देखकर प्रेम कर पाते हैं। These are all the signs and these are all the proofs that Holy Spirit is dwelling within us. Because as an ordinary human being, we cannot possess all these beautiful virtues what that are recorded in the Bible. और इसी से पता चलता है प्रियो कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आया है और हमारा जीवन बदला है। इन सब चिन्हों से हमें हमें सिद्ध होता है कि हमारा जीवन बदला है, क्योंकि साधारण जो संसार के लोग हैं, ऐसे विचारों को, जो महत्वपूर्ण मूल्य है, उनके जीवन के विचार नहीं हो पाते हैं। My dear brothers and sisters, my dear friends, truth is common for all people, all country people, all religious people, irrespective of any background, caste, and creed. And because truth is truth, that's it. प्रियो, जाति पूरे संसार में प्रिय भाई बहनों सबके लिए बराबर होती है। चाहे वो कोई देश हो, कोई धर्म हो, कोई भी पृष्ठभूमि के लोग हो, कोई भी जाति के लोग हों, सच जो है सबके लिए समान समान या बराबर होता है। Culture may change, the background may change, but the truth is same. The language may change, the same truth for all people all over the world from beginning to the end, the same truth. और प्रियो, चाहे संस्कृति अलग हो, चाहे पृष्ठभूमि अलग हो, चाहे भाषा अलग हो, चाहे लोग अलग हों, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक सत्य कभी नहीं बदलता, सच एक ही होता है। Whatever I'm saying on the basis of the scripture, the written text of the Bible. I know that all Christians, all believers will have this kind of experience by all means. Maybe depends upon the measure, maybe a different percentage of measures. That only varies, but the virtues are common to all. I believe even Anil Khare, when he's translating, he agrees with me. Even the other Rabi Kisku or Sukudev and few those who are right now joining online will agree with me saying that yes, brother, what you said is right. This is my story, this is my experience. और मैं आपको वचन के आधार पे कह सकता हूँ प्रियो कि जो मसीह होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, उनके जीवन में जो मैं बता रहा हूँ वही अनुभव होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम लोगों के जीवन के अनुभव अलग-अलग मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन हम सबके जीवन में लगभग यही अनुभव है। जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब मेरी बात से सहमत हैं। Do you agree with me, brother Anil Khare? यस अंकल। Yeah. Do you agree with me, Sukhdev bhai? सुखदेव भैया जी, जो अंकल बोल रहे हैं उसके इस विचार के लिए आप सहमत हैं? बताइए भैया अनम्यूट करके। जो बातें अभी अंकल बोल रहे हैं उसके लिए आप सहमत हैं? ऐसा अनुभव हमारे जीवन में आता है? हाँ, सहमत हूँ सर, सहमत हूँ। या अनिल रवि किसकू भाई, आप क्या बोलते हैं? मैं जो बोल रहा हूँ सही है? ये हुआ आपके जीवन में? रवि किसको अंकल बताइए। अनम्यूट करके बताना है। अनम्यूट करके बताइए। Dr. Sridhar, do you agree with me? What I'm saying, is it true? Hello, I can't hear you. Yes, uncle. Yeah, wonderful. Brother Narayandru, ये सही है मैं जो बोला?
Yes, uncle. Yes, uncle. Wonderful, wonderful. Ravi Kisku, why are you not able to unmute? Okay, that's fine because our time, I'm running out. I can't waste my precious time because you're busy people and I'm also busy people. It's difficult to get time. So I know that this is truth because this is recorded and many are listening, and I believe people agree with me. और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी लोग हैं हमारे साथ, सभी जो मैं विचार कर रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, उसके साथ जरूर आप सहमत हैं। This is the first step. और ये जो है, ये पहला क्रम है। Now, the second step, what we need to understand is how can God, who is beyond, the universe and who is away from time, space, matter, one who is eternal God, how can that eternal God can dwell in my heart? That is a big question. और दूसरा सवाल जो हमारे जीवन में आता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, वो हमारे जीवन में कैसे वास कर सकता है? Yeah, we'll try to understand bit by bit. और इसे हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। But verse 17 says, the one who joins himself to the Lord is one spirit with him. This kind of unity, this kind of, diverse unity in diversity. We need to understand that. और पहला कुरिन्ती 6 अध्याय के 17 में जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रभु की संगति के में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इससे हमें समझने में सहायता मिलेगी कैसे हम अलग होते हुए भी मसीह में एक हो जाते हैं। If we need to understand the study of God, theology proper, and we need to understand anthropology, the study of man. और हम इसके द्वारा ये भी अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे जो थियोलॉजी है उसमें हम परमेश्वर के अध्ययन को करते हैं, और मानव विकास अध्ययन में, एंथ्रोपोलॉजी में हम मनुष्य के विकास को भी साथ में अध्ययन करते हैं। So these two are big subjects, but what I do is I'll put all these things in nutshell. और मानव के विकास के क्रम को समझना और एक तरफ परमेश्वर को समझना बहुत बड़ा विषय है, लेकिन फिर भी मैंने उसे बहुत ही थोड़े संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखा है। Our question is, how can great big God can dwell in my heart? और मेरे लिए एक बड़ा सवाल है कि इतना महान और विशाल परमेश्वर मेरे हृदय में कैसे रह सकता है? So in the theology proper, in the study of God, और समुचित अर्थशास्त्र में और अब वचन में देखें तो there are many attributes of God. हम देखते हैं कि परमेश्वर के बहुत सारे गुण होते हैं। So God is spirit, God is eternal, God is infinite, God is transcendent, God is immanent, God is omnipresent, God is omniscient, God is holy, God is sovereign, and so many characteristics God has. अब देखेंगे कि परमेश्वर के इतने सारे गुण होते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान है। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के गुण होते हैं। So God has many titles, God has many attributes, God has his name as Yahweh, I am. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के बहुत सारे शीर्षक होते हैं, परमेश्वर के बहुत सारे गुण होते हैं, परमेश्वर के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे हम बोलते हैं याहवे। But here the Bible says that John's Gospel chapter 4 verse 24, God is spirit. That means God is not physical, he is metaphysical. और जैसे यूहन्ना 4 के 24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर कोई शरीर नहीं है और वो शरीर से परे एक आत्मा है। Yeah, that's important. God is spirit. Please remember. Secondly, we will not be able to explain all these things, but there is a link between one with the other. और इन सब का हमें वर्णन करने का समय नहीं है, लेकिन ये जो सारे परमेश्वर के गुण हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। So we need to understand God is transcendent and God is immanent. और हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर जो है
वो अविनाशी है, वो कभी भी नाश नहीं हो सकता। और परमेश्वर जो है नहीं, कभी God is transcendent means God is beyond. God is beyond. God is bigger than. God is beyond creation. God is transcendent means God is so beyond that I can't fully understand him, but he is beyond. And at the same time, he is also immanent. That means he is actively involved. He is nearer to me. तो परमेश्वर के गुणों में हम देखते हैं प्रियो कि एक तरफ तो परमेश्वर हमारी समझ से परे है, वो बहुत ऊंचे में वास करता है, लेकिन दूसरे ही तरफ परमेश्वर का हम गुण देखते हैं कि वो हमारे इतने निकट है कि वो हम उसे महसूस कर सकते हैं। Wonderful. You're right, brother. God is both transcendent and God is immanent. इसलिए परमेश्वर हमारे समझ से परे बहुत ऊपर भी है, और परमेश्वर हमारे बहुत पास में और निकट भी है। Yes, God is the Spirit, God is eternal, God is infinite, God is omnipresent, God is holy, and God is sovereign. It is true in all aspects. God does not compromise on his characteristics. और परमेश्वर आत्मा है, अनंत है, सनातन है, पवित्र है, सार्वभौमिक है, सर्वशक्तिमान है। ये परमेश्वर का जो गुण है ये कभी बदलता नहीं है। So let me take just these two things and then try to understand little better. God is infinite. That means without limits. God is beyond time, beyond space, and beyond matter. समय, वस्तु और क्या से परे अंकल? तीसरा Matter. एंड थर्ड वन टाइम, मैटर। Yeah, time, space, matter. It is on the screen. ओके, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा अनंत है, और हमारा जो परमेश्वर है वो समय और स्थान और पदार्थ से परे है, वो किसी के सीमा में नहीं है। And God cannot be measurable. It is beyond, we can't measure. और अगली बात है कि परमेश्वर कभी भी माप नहीं सकते हम उसे, क्योंकि वो मापने योग्य नहीं है। And God is self-sufficient. God does not depend upon anything. He is totally independent. और परमेश्वर आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है, वो स्वयं में ही संपूर्ण है। And God is perfect. God is complete. हमारा परमेश्वर संपूर्ण है, परिपूर्ण है। And God is holy. That means He is different. He is unique, otherness. और हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसका मतलब है कि वो भिन्नता रखता है, वो अनोखा है, और वो सबसे अलग है। So when we hear all these things, only one response: we bow down and say that, Lord, how great you are, how awesome you are, how wonderful you are. You are not like any other on the face of the earth. You are totally different. Your great and your majesty and your glory, I can't explain. And saying that, we'll be worshiping God. और परमेश्वर के इन सारे गुणों को देखते वक्त हमें एक ही भावना आती है कि हम उसके सामने घुटना टेक देते हैं, झुक जाते हैं, और अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं कि परमेश्वर आपके समान पवित्र और अनोखा और भिन्न इस संसार में कोई भी नहीं है। So, God is transcendent means God is above, God is beyond, and God is outside the creation. तो परमेश्वर उत्कृष्ट है, या हमारी समझ से परे है, या सबसे ऊपर है। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर सृष्टि के ऊपर है, और सृष्टि से बाहर भी है, और उससे भी अलग भी है। And God is sovereign. That means God rules all creation without bound by it because He is the supreme authority. और परमेश्वर सार्वभौमिक है, और इसका मतलब है कि परमेश्वर सारी सृष्टि पे शासन करता है, फिर भी वो उससे बंधा नहीं है, और सर्वोच्च सत्ता उसी की है। And at the same time, God is immanent. और उसी समय हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है आसन्न है, वो हमारे सबके बहुत करीब है। That means God is actively involved in the creation. और इसका मतलब है कि सृष्टि की प्रक्रिया में परमेश्वर सक्रिय रूप से शामिल है। It does not mean to say that God is inside of His creation. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अपनी सृष्टि के अंदर है, But God dwells in the sanctified human hearts. There's only one पर exception.
और मनुष्य अपनी सृष्टि के अंदर तो नहीं है, परंतु केवल एक जगह है कि जहां पर उन्होंने मनुष्य के हृदय को पवित्र किया है, उन पवित्र मनुष्यों के अंदर वो निवास करते हैं। So Bible says that God cannot dwell in water. God cannot dwell in fire. God cannot dwell in stone. God cannot dwell in trees. And God cannot dwell in any of his creation because he made all that creation with simple utterance. और परमेश्वर के बारे में भी बात समझना है कि वो पानी में, आग में, पत्थर में, पेड़ पौधों में नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने सृष्टि बनाई है, वो इसलिए सृष्टि के अंदर नहीं रहता। So this we need to understand very careful. Please remember, God is transcendent means God is beyond, outside, above his creation, and God rules all creation because he is the creator, he is the supreme authority. तो इस बात को हम समझना है प्रियो कि परमेश्वर उत्कृष्ट है, परे है, इसका मतलब है कि परमेश्वर सृष्टि से ऊपर है, परे है, उससे परे है। और परमेश्वर सार्वभौमिक है, इसका मतलब है कि वो सृष्टि पे शासन करता है और उससे बंधा नहीं है, सर्वोच्च सत्ता उसी की है। At the same time, God is immanent. What it means that God is actively involved in the creation and God is nearer to us, and God can dwell inside the human beings who are sanctified by the precious blood of Jesus Christ, not in everybody's heart. But God cannot be inside of his any other creation like stone, water, fire, tree, and animals, or many things like that. और परमेश्वर आसन है, इसका मतलब परमेश्वर अपनी सृष्टि के बहुत करीब है। सृष्टि की प्रक्रिया में परमेश्वर सक्रिय रूप से शामिल है और मनुष्य जो पवित्र हैं, जो पवित्र किए गए हैं, उन मनुष्यों के अंदर वास करता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर अपनी सृष्टि की किसी और वस्तु के अंदर, जैसे पानी है, आग है, पत्थर है, पेड़ पौधे, उसमें वो वास नहीं करता, परंतु पवित्र किए गए जो हृदय हैं, उन मनुष्यों के अंदर वास करता है। But you may ask a question saying that, brother, Bible says that God was in the fire when people of Israel walked out of Egypt till they come to Sinai. God was traveling with them. In the daytime, he was appeared like a cloud. In the nighttime, he appeared like a pillar of fire. तो आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि जब परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र से निकालकर सिनाई पर्वत तक ले गया, तो वो तो आग उनकी अगुवाई करता रहा, दिन में बादल के खंभे और रात में अग्नि का बादल उन्हें अगुवाई करता रहा। Even in the tabernacle, Holy of Holies, it is called Shekinah glory. Same way, daytime as the pillar of cloud and nighttime as a pillar of fire. And God led them from Egypt 40 years, even when till they came up to the promised land. और हम देखते हैं कि मिलाप वाले तंबू को भी हम देखते हैं और वहां पे देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की जो शकाइना ग्लोरी है, जो महिमा है, उसकी उपस्थिति को हम वहां पे देखते हैं आग और बादल के रूप में, और कैसे परमेश्वर 40 वर्ष तक उन्हें अगुवाई करता रहा और वायदे के देश में ले गया। And we also seen in Leviticus and in Exodus chapter 17 and Numbers chapter 20 that Moses hit the stone and strike the stone and water gushed out of stone. And 1 Corinthians chapter 10, there it is written that that stone is Christ. और हम देखते हैं निर्गमन 17 अध्याय में, गिनती की किताब 20 अध्याय में, और उसी समय पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में कि ये जो चट्टान जिससे पानी निकला था वो मसीह था। That is called theophanies. इसे हम थियोफैनी कहते हैं। That means temporary appearance so that humans may understand supernatural qualities of God. It's only temporal but not permanent. But we find that in the New Testament, Jesus Christ is the image of God, one who dwelled among human beings as Emmanuel. और हम देखते हैं थियोफैनी का मतलब क्या होता है। परमेश्वर की जो
टेम्परेरी का मतलब थोड़े समय की जो प्रस्तुतिकरण है कि परमेश्वर अपने आप को थोड़े रूप में प्रस्तुत कर रहा है कुछ देर के लिए, उसे ताकि मनुष्य कुछ बातों को समझ सके और उसके अलौकिक गुण को मनुष्य देख सके, उसे हम थियोफैनी कहते हैं। परंतु नए नियम में हम जरूर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के रूप में हमारे बीच में आए थे, वो परमेश्वर के स्वरूप थे, जिन्हें हम इमानुएल कहते हैं। So in the Bible, God revealed himself progressively. और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने अपने आप को हमेशा एक क्रम के रूप में इस संसार में प्रस्तुत किया हुआ है। So the revelation of God is complete when God entered into this world as human through the Virgin Mary. So the revelation of God is complete and no more theophanies, no more Christophanies. और आज जब परमेश्वर जो है मनुष्य के रूप में जब प्रकट हो गया है मसीह के रूप में, तो हम देखते हैं आज जब परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करने के लिए क्रिस्टोफैनी या किसी प्रकार की थियोफैनी के रूप की अब जरूरत नहीं रह गई है। So God appeared to Abraham, God appeared to Jacob, God appeared to Isaiah the prophet, and God appeared to Manoah, and God appeared to Joshua temporarily as human being, as angel. That is called Christophany. और परमेश्वर अब्राहम को, याकूब को, यशायाह को और कितने भविष्यवक्ताओं को दिखाई दिया है एक स्वर्गदूतों के द्वारा। इस प्रकार के प्रकटीकरण को क्रिस्टोफैनी कहते हैं। And God appeared in Jesus Christ at least for 33.5 years on the face of the earth physically. और परमेश्वर अपने आप को भौतिक रूप से 33.5 साल जो इस संसार में प्रस्तुत किया या दिखाया, वो यीशु मसीह के रूप में है। And he was crucified, buried, and rose again with a glorious body. और वो यीशु मसीह भी मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन महिमामय शरीर को लेकर जी उठा। And he has explained the physical body and the glorious body. The difference between two in the scriptures, if you can carefully study, you'll understand that. और यीशु मसीह इसलिए अपने जो साधारण शरीर, संसार के शरीर और महिमामय शरीर दोनों को प्रकट करता है। And then in the eternity, we find Jesus Christ with the glorious body, and we will be able to see Christ with our own eyes. That's what Apostle John says in 1 John 3:3. When we see him, we will be like him. और जो हमारा यीशु मसीह है वो अनंत काल के लिए जब चला गया है अभी, तो वो अपने महिमा में शरीर में आज वास करता है और एक दिन हम भी उसके उस महिमा में शरीर को देखेंगे, जिस जो यूहन्ना 1:33 में कहता है कि एक दिन यूहन्ना 1:3 में कि एक दिन हम उसे जरूर देखेंगे। The doctrinal God is so big. I couldn't explain everything, but at least what we require for our subject, I did my best to present you. और परमेश्वर का सिद्धांत अध्ययन करना बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जो कुछ हमारे लिए समझना आवश्यक है उन थोड़े थोड़े बातों को हम अध्ययन कर रहे हैं। So here the main point is, how can Holy Spirit dwell in human bodies? That's a point. और मुख्य बिंदु हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि कैसे पवित्र आत्मा जो है मनुष्य के शरीर में वास करता है। So with all the attributes of God, with all the titles of God we have studied thus far, and we need to also know the anthropology. You know what the doctrine of man says? Adam was made in the image of God. That's the point. और जैसे कि न हम परमेश्वर के गुणों को देखा, उसके शीर्षक को देखा, वैसे ही जब मानव विकास के बारे में अध्ययन करते हैं तो भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था। If Adam was not made in the image of God, God could have not become human. Even it was not possible for Jesus to be born on the earth. और अगर परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में नहीं बनाया होता तो कभी भी परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस धरती पे नहीं आ सकता था, जैसे कि वो यीशु मसीह के रूप में आया। You please remember, it is because Adam and Eve were made in the image of God, and so it was possible for God to become man. और यही कारण है प्रियो कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने मनुष्य
अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। इसी कारण परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के रूप में एक दिन इस धरती पे ले आया। But in the Genesis chapter 3, we find very sorrow state of affair, how Adam and Eve rebelled against God, and even in despite God categorically told them, saying that the day you eat, you will surely die. और हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब 3 में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर के विरोध में पापी बन गया, और इसीलिए परमेश्वर को एक कानून उन्हें बताना पड़ गया कि जिस दिन तू ये पाप करेगा उस दिन तू मर जाएगा। They died. और वो मर गए। That means the Spirit of God dwelling in them departed. और वो मर गए, इसका मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा जो उनके अंदर वास करती थी वो अलग हो गई। When God made Adam and Eve, God had a plan that they should continue to live, but they declared independent. They wanted to live all by themselves, and they rejected God, and God departed from them. Ikaboth, it is called in 1 Corinthians chapter 4. और हम देखते हैं कि ये आदम और हव्वा हमेशा चाहता था परमेश्वर कि वो उनके साथ रहे, लेकिन आदम और हव्वा ने परमेश्वर से अलग होने का विचार कर लिया और स्वतंत्र रूप से जीने के लिए स्वीकार किया, परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया और उनसे अलग हो गया। हम इस वचन को 1 कुरिन्ती 4 अध्याय में देखते हैं। So, for that reason, God became human. For the preparation of God to become human, it took almost 4,000 years. और हमने देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बन के आया, और परमेश्वर को मनुष्य बनकर आने की तैयारी का जो हम देखते हैं 4000 साल लगे। And ultimately, 2000 years back, God became human and he died on the cross of Calvary as a Lamb of God who took away the sin of the whole world. और आज से 2000 साल पहले हमने देखा कि परमेश्वर मनुष्य बनकर आया और उन्होंने सलीब पर, क्रूस पर अपने प्राण दिया, और वो उसके लिए एक मेमना के रूप में आया जो जगत के पापों को उठा के ले गया। Those who believe this truth, and Jesus is kind and gracious, compassionate to forgive us as our sins and to cleanse us from all our uncleanliness and unrighteousness, and Holy Spirit dwells within us. और प्रियो, जो इस सच पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह करुणा और दया का सागर है जो हमारे पाप क्षमा के लिए आया, ऐसा विश्वास करने वालों के अधर्म क्षमा किए जाते हैं और एक हर एक अशुद्धता उनके जीवन से दूर होती है। And Colossians chapter 1 verse 27 says, Christ in you, that is the hope of glory. It is a mystery. और पहला कुलूसियों की किताब 1:27 आप देखेंगे तो वहाँ एक विशेष प्रकार की अद्भुत गवाही लिखा है कि मसीह जो तुम में रहता है वो आशा की महिमा है। So we will not be able to understand completely, but we will have little, signs and few traces and few effects and reflections. और हमारे पास सारे विषयों को देखने का बहुत समय तो नहीं है, इसलिए हमने थोड़े चिन्हों को और उसके आदान प्रदान और प्रभाव को भी देखा है। No, the Bible says that wherever God and man meets, there ought to be a mystery. We can't completely understand God. We cannot totally understand God. और जब भी हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य एक साथ मिले हैं, तो उसकी पूरी महिमा को और पूरे विषय को हम कभी समझ नहीं पाए हैं। If I know God, I'll be God. क्योंकि अगर मैं तो परमेश्वर को पूरा समझ गया तो मैं परमेश्वर ही बन जाऊंगा। If I have to know God, I should be there from the beginning of God, from the ending to the God. But Bible says God has no beginning, no ending. और अगर मैं परमेश्वर के जैसा हो जाऊंगा तो मुझे तो उनकी शुरुआत और अंत मालूम हो जाएगी, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर की ना तो शुरुआत होती है ना ही अंत होती है। I was born somewhere 68 years back. I don't know when I die because my age limit is, a particular span of time. I can't understand God who is eternal, who has no beginning and no ending. That's why the Bible says that God is mystery. I understand God as much as God revealed himself to me through the scriptures, that's called Bible. और अंकल बता रहे हैं उनकी उम्र 68 साल है और वो
कुछ समय के बाद जब तक परमेश्वर ने रखा ही संसार में है, ना तो वो उससे पहले थे ना तो आगे हैं। इसीलिए जो अनंत परमेश्वर है, जिसकी ना तो शुरुआत है ना कोई अंत है, उसे हम नहीं समझ सकते। वो एक रहस्य है हमारे लिए। लेकिन उन रहस्यों को हम कहाँ तक समझ सकते हैं, जहां तक परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें प्रकाशन दिया है। And we have already seen that 2 Corinthians 5:17, this is the sign. If Holy Spirit is dwelling within me, I ought to be a new creation. Old things passed away. There are something called new. It is the power of the resurrection of the Holy Spirit who brings transformation in my life. और दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 17 वचन में हम देखते हैं कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि होते हैं, पुरानी बातें उनके जीवन से जाती रहती हैं, क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा जब आता है तो उन्हें पुनरुत्थान के अनुभव में लेके जाता है और उन्हें नया बना देता है। And then Romans 8:1 says that there is no condemnation at all for those who are in Christ Jesus. और रोमियो 8 के 1 वचन में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड किया गया नहीं है। Because I am declared justified. I am declared, a righteous because of the imputed righteousness of Jesus Christ by faith, and no one can condemn me. And heaven is a place open for me. I have an access into heaven through Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहरा दिया है, और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता आज मेरे जीवन में है, क्योंकि मैंने उन पर विश्वास किया है। इसलिए उनकी जो धार्मिकता है वो मेरे अंदर डाली गई है, और आज मैं स्वर्ग में उनके साथ वास करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह की ने मुझे शुद्ध किया है, अपने लहू से मुझे धोया है। And we have been baptized into Christ. I am one with him. I am in him and he is in me. That's what Bible says. और रोमियो 6 के 3 में भी हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि हम यीशु मसीह में बपतिस्मा पाए हुए हैं। इसका मतलब आज हम मसीह में हैं और मसीह हम में है। And Colossians 2:10 says that in him you have been made complete. और कुलुसियों की किताब 2 अध्याय के 10 में लिखा है कि तुम जो है मसीह में संपूर्ण हो जाते हो। And John's Gospel chapter 15 verse 5 says, one who remains in me and I in him bears much fruit. और हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय के 5 में लिखा है कि जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। So the point is, we need to understand this. Verse 15 says, shall I then take away the parts of Christ which make them parts of prostitute? इसलिए पहला कुरिन्थी 6 के 15 में कहता है कि इसीलिए क्या मैं मसीह के अंगों को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बना दूं। Chapter 6 verse 15, do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take away the members of Christ and make them members of a prostitute? May it never be. और जैसा पहला कुरिन्थी 6 के 15 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। And verse 16 says, or do you not know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? For he says, the two shall become one. और पहला कुरिन्थी 6 के 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। And then verse 17 says, the one who joins himself to the Lord, one spirit with him. और पहला कुरिन्थी 6 के 17 में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। So we know that 1 Corinthians chapter 3 verse 16, I think it's. Please turn with me to 1 Corinthians chapter 3 and verse 16. There Apostle Paul gives a beautiful illustration. Chapter 3 and verse 16 and 17. Do you not know that you are a temple of God, that the Spirit of God dwells in you? If any man destroys the temple of God, God will destroy him. And the temple of God is holy, and that is what you are. और पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 16 और 17 में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। The 1 Corinthians chapter 3 is the context of a church.
और पहला कुरिन्ती 3 अध्याय में जो ये बातें बताई गई है ये Here कलीसिया he, yeah, को please लेकर। God. Please God. तो पहला कुरिन्ती 3 अध्याय में जो ये वचन कहा गया है ये कलीसिया के संदर्भ में कहा गया है। That means whoever destroys the church, the temple of God, God will destroy him. और इसका मतलब है कि परमेश्वर की जो कलीसिया है, जो परमेश्वर का मंदिर है, अगर उस कोई मंदिर कलीसिया को नष्ट करेगा तो परमेश्वर भी उसे नष्ट करेगा। A serious warning given to all who are destroying the temples of the Holy Spirit, temples of God, the people of God who are purchased by the precious blood of Jesus Christ. When God dwells in their midst, it is called the church, not physical. और परमेश्वर की स्पष्ट चेतावनी है कि जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है, परमेश्वर उसे नाश करता है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है लोगों के अंदर वास करती है और वो उसके मंदिर बन जाते हैं, और परमेश्वर के जो लोग हैं वही वास्तव में उसकी कलीसिया या चर्च हैं। Let me repeat, because many people do not know what church is. People think where there is a sign of cross, a structure, a building made with cement and steel and sand and bricks and or asbestos roofs and whatever may be the structure. The structure is not church. Church is the church called the people of God who are born again, who are cleansed by the precious blood of Jesus Christ, who are sanctified by Jesus Christ, and God dwells in their midst. When God dwells in their midst, in the midst of the people of God, that is called the church. So no one can destroy the church. Please remember that. और एक बात याद रखिए प्रियो कि लोग सोचते हैं चर्च क्या है, जहाँ पे क्रूस लगा हुआ है, जो भवन है, जो सीमेंट पत्थर स्टीलों से मिलके बना हुआ है, लोग सोचते हैं वही चर्च है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। वास्तव में चर्च जो है वो परमेश्वर के लोग हैं जिन्हें नया जन्म मिला है, जो शुद्ध किए गए यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो पवित्र हुए हैं, और जो परमेश्वर जिनके निकट वास करता है, वही लोग वास्तव में परमेश्वर की कलीसिया या चर्च हैं। और कोई भी परमेश्वर की कलीसिया को नष्ट नहीं कर सकता। So Bible says, whoever destroys the church, God will destroy them. इसलिए वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर की कलीसिया को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। With the inference of this text, we can apply the same to the individual believer. I'm a Christian. If I destroy my body, how do I destroy my body? Through immorality, through adultery, through fornication. और यही जो संदर्भ है ये हम एक एक विश्वासी के लिए भी है, क्योंकि जो जैसे हम कह सकते हैं कि मेरा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, और अगर कोई इसे अनैतिकता के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा नष्ट करता है तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। Please remember, there would be n number of temptations. याद Opposite gender temptation is obvious because that is God creation. That's God's creation. But it should not be misused. Only wife and husband, they are supposed to dwell together and meet together. They can become one body, but definitely not beyond marriage boundary. और परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रियो, इसलिए हम याद रखना है। हम जानते हैं कि हमें कई बार प्रलोभन हमारे जीवन में आता है, और हम देखते हैं कि एक विरोधी लिंग के प्रति, चाहे स्त्री या पुरुष, आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और ऐसे पाप में गिरने का एक प्रलोभन हमारे जीवन में आता है। लेकिन हम याद रखना है, परमेश्वर ने हमें पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने को कहा है, और पति और पत्नी एक तन होते हैं, जो कि विवाह में आने के बाद एक सीमा में एक किए जाते हैं। So we have discussed at length how God can dwell in the hearts of human beings, those who are sanctified in Jesus Christ, those who are cleansed by the precious blood of Jesus Christ. और हमने देखा कि परमेश्वर किन मनुष्यों के हृदय में रहता है। वो उन मनुष्यों के हृदय में रहता है जो उसके लहू से पवित्र किए गए हैं, धोए गए हैं। And how we are responsible to keep our body clean because God is holy and we are supposed to be holy. और परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी भी दी है कि अपने शरीर को किस प्रकार से रखें, क्योंकि वचन लिखा है वो पवित्र है और हमें पवित्र बनना है। No Christian, no believer
No person who says that God dwells in me, Holy Spirit dwells in me, has license to commit any kind of immoral sin. और कोई भी विश्वासी या मसीही जो कहता है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करते हैं, उनको किसी भी प्रकार के पाप करने का कोई भी लाइसेंस नहीं है। So it is a responsibility seeking God's grace, seeking God's compassion and mercy and help from the Holy Spirit so that we may protect our bodies, because it is the will of God. 1 Thessalonians chapter 4, there Apostle Paul says to protect our body from immoral activities. That is the will of God. और हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को, दया को और करुणा को खोजे और पवित्र आत्मा को, ताकि वो अपना जीवन दे सके और शुद्ध और पवित्र रह सके, जैसा कि परमेश्वर ने पहला थिस्सलुनीके 4:7 में कहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। So that's the reason why Bible says flee from immorality, free from fornication, free from adultery. इसलिए Flee. Yeah. इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें व्यभिचार से, अनैतिकता से, पापों से दूर भागना है। Don't ever think that you can manage, you can somehow control. You cannot control. We have to simply run away. We have to simply flee away. That's what Bible says. और हम ये नहीं बोल सकते कि हम शादी किए हैं इसलिए हम उस पाप में नहीं फंसेंगे, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम इस पापों से भागना है, वहां से दूर चले जाना है। We all believers, all Christians, those who are born again, those who are, called by the name of Jesus Christ, are supposed to protect their moral character, behavior for the glory of God. Bible says, you are not your own. You are purchased by the Holy Spirit. You glorify God through your bodies. और हम में से जितने मसीही हैं, विश्वासी हैं, जिन्होंने नया जन्म पाया हुआ है और उन्हें पवित्र आत्मा मिला हुआ है, जिन्हें प्रभु ने बुलाहट दी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो नैतिक रूप से अपने चरित्र को अच्छा रखें, अपने जीवन की गुण को अच्छा बनाए रखें, क्योंकि वो यीशु मसीह के कीमती लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। वे खुद के नहीं हैं, परंतु परमेश्वर के हैं। It is not easy, but it is possible. ये बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। All sexual immoralities, all temptation begins in the mind, and then it comes to the physical activities. और जितने भी प्रकार की जो शारीरिक संबंधों से संबंधित पाप हैं और विचार हैं प्रियो, ये सबसे पहले मन में आता है और उसके बाद शरीर में आता है। And James chapter 1, it is very clearly written that the lust, when it is conceived, then sin is bring forth. और जैसे कि याकूब की किताब 1 है, वहां पे लिखा हुआ है कि अभिलाषाएं किस प्रकार गर्भ हो जाती हैं और पाप को जन्म देती हैं। So none of us are perfect. None of us are, so strong and able to overcome. But we need to seek God. We need to seek the grace and mercy of God, and Holy Spirit will help us, because He already helped long before. There was one young man by name Joseph. और हम में कोई सभी लोग सिद्ध नहीं हैं, हम में से सभी लोग कोई बलवान नहीं हैं जो इन सारी समस्याओं से हम जीत जाएं, ओवरकम हो जाएं, परंतु हमें लगातार प्रभु को, उसकी दया और करुणा को खोजते रहना है और पवित्र आत्मा की सहायता से हमें इन विषयों से जय पाना है, जैसे कि हम वचन में यूसुफ के उदाहरण को देखते हैं जिन्होंने जय पाया। And Samson did not took the warnings of God, and he brought disgrace to the name of God. We have got beautiful example. और हम देखते हैं सिमसोन ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और इसके कारण उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा का अनादर हुआ। Even a man called David, after the own heart of God, he was for about 2 years, he was a backslider, and he repaid. Of course, he repented, he was forgiven, he returned, but he had to pay for the terrible sin he has done with Bathsheba. And these are all the lessons recorded in the scripture for your and my edification. और जैसा कि हम वचन में देखते हैं, दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि दाऊद कैसे प्रभु में आने के बाद 2 साल तक वो बैकस्लाइड हो गया,
क्योंकि वो बत्सेबा के साथ पाप में गिर गया, लेकिन हम देखते हैं उसके कारण उसको कीमत चुकाना पड़ा और फिर से उसे पाप क्षमा के लिए जाना पड़ा और प्रभु के पास आना पड़ा। If we want to worship God, there is one and only possible way, offering our bodies as a living sacrifice, acceptable and holy, place it on the altar as a sacrifice, then we'll be transformed, our mind will be transformed, we'll be able to know the will of God properly. और परमेश्वर की आराधना हम कैसे कर सकते हैं प्रियो? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान हम चढ़ाएंगे। इसी के द्वारा हमारी आराधना होती है और इसी के द्वारा हमारा मन नया बनते जाता है और हम परमेश्वर की स्थित इच्छा को जान पाते हैं। Shall we pray and shall we look to the Lord for His special grace so that we may live holy on the face of the earth, in the midst of all the temptations and corruption around us? और जबकि संसार में चारों तरफ प्रलोभन है, भ्रष्टाचार है, आइए इसके मध्य में हम परमेश्वर की ओर निहारें ताकि उसका अनुग्रह हमें मिले, ताकि उसकी महिमा के लिए हम पवित्रता से जीवन बिता सकें। May the Lord continue to help us, and may the Lord take glory unto Himself and bless the word which He has given to us. परमेश्वर हमारी निरंतर सहायता करते रहे और अपने वचनों के द्वारा हमें आशीष देता रहे। Say amen to that. आमीन। Amen.